Good evening, everyone. This is Dr. Nisha Pansare. I hope I am audible to you. If it is not audible, so please let me know in between. Yeah. Today we are here to discuss about male infertility. And why is it so important to discuss about the male infertility? Because it is on a rising trend nowadays. When we talk about infertility, when the couple is trying for a conception more than a year, having unprotected coital activity for a year, and still they are not able to conceive, so that is what we are calling as primary infertility. So when we are talking about the causes, like one third of the causes are due to female factor, one third are because of the male factor, and rest one third are combined with male and female factor or unexplained. So when we talk about this male infertility, males are found to be solely responsible for these factors for 20 to 30% cases overall, and overall they contribute to 50% of the cases. In current era, male factor infertility is on a rising trend, so it has to be diagnosed and to be treated because we have many advanced techniques to diagnose it and to cure it. So main factor of male fertility, so that can be seen as an alteration of sperm concentration and or motility of the sperm and sperm quality as well. So we are discussing today causes of the male infertility and am I speak loudly? I'm getting. Am I audible? Please check with this thing. So when we are talking about the factors for the causative factors for the male infertility, there are pre-testicular, testicular, post-testicular and others. So in testicular or hormonal causes, we are coming to it. But first we have to understand the male reproductive system, where I'll be telling you in a very plain manner. See, every male has a hypothalamus. From that, the hypothalamus is releasing gonadotrophic releasing hormones, and it is giving signals to our pituitary gland, and that pituitary gland is going to secrete the hormones. Those are FSH and LH and inhibin. So those are giving signals to Leydig cells and Sertoli cells in the testicles. So this problem has to be discussed. Where is the problem exactly and what is causing male infertility in this patient? So first would be if there is an hormonal imbalance in any of these factors. So these causes are related to the secretion or less secretion of hormones like GnRH, FSH and LH. Is my sound clear right now? Or testicles are not able to produce sufficient sperms due to this hormonal imbalance. हर मेल में दो टेस्टिकल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है. So if this sperm production is not proper or if it is hampered due to hormonal imbalance, so we have to diagnose it as hormonal imbalance or hypogonadism in that patient. So there are common causes which are involved in genetics. So syndromes होते हैं कुछ तरह के. One is Kallmann syndrome, जहाँ पे hypogenesis होता है. So genetic material जो है that is passed on to the next generation. So in Kallmann syndrome there is anosmia and pubertal changes are not achieved. और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, जहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल्स जो है वो बढ़े हुए होते हैं और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. और पिट्यूटरी ट्यूमर्स. कैन वन चेक विथ माय वॉइस इफ माय वॉइस इज ओके? Just check with the voice. Ma'am, can you just speak a little louder? Yes. So pituitary tumors, जैसे मैंने बताया, ये हार्मोन सिक्रीशन जो होते हैं ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हमें सिग्नल्स देते हैं. सो अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में स्थित होती है, अगर वहाँ पे कोई सिक्रीशंस में प्रॉब्लम हो तो ये हार्मोन्स जो है सही से तैयार नहीं होते और टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है.
और एक्सोजेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स आर सीन, मतलब बहुत सारे एंड्रोजन ड्रग्स अगर एक्सटर्नली लिए गए हो तो उस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। स्टेपिंग अहेड, टेस्टिकुलर कॉजेज। टेस्टिकुलर कॉजेज में है कि जहाँ पे सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है स्पर्म्स का, तो नॉर्मल कॉजेज पाए जाते हैं। द वन इज लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है, जो वेन्स होते हैं जो ड्रेन करते हैं सारा टेस्टिकल्स में, तो उस वेन्स को स्वेलिंग आ जाती है। सो वो वेन्स जो है टॉर्चर्स दिखाई देते हैं हमें। सो दैट इज वन कॉज फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज फॉर टेस्टिकुलर कॉजेज। एंड अनडिसेंडेड टेस्टिस, दिस इज अनदर कॉज लाइक विच इज सीन इन द प्यूबर्टल चेंजेस। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस में क्या होता है, जो हमारे टेस्टिस जो डेवलपमेंट स्टेज में जो इंग्वाइनल रीजन में होते हैं, वो एब्डोमेन से इंग्वाइनल रीजन में आते हैं और फिर वो वहाँ से टेस्टिस में डाउनवर्ड हो जाते हैं। बट अगर उस क्रोटल सैक में अगर टेस्टिकल्स डाउनवर्ड नहीं आए, सो दैट इज कॉल्ड एज अनडिसेंडेड टेस्टिस, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इज माई वॉइस क्लियर? कैन एनीवन जस्ट हेल्प मी विद दैट? Sorry for the technical issue. We are just checking with the voice. Coming to the causes of, going further with the causes of testicular causes in male infertility. So mumps, orchitis, जो कोई इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है, मम्स की सिचुएशन जनरली ये सिचुएशन बचपन में पाई जाती है, तो उसकी वजह से टेस्टिस को अगर इन्फ्लेम्ड स्टेज में पाया जाता है तो वहां पे स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्दर, सो टेस्टिकुलर ट्रॉमा, कभी भी कहीं टेस्टिकुलर ट्रॉमा हुआ हो या टॉर्शन ऑफ टेस्टिस हुआ हो। आई होप माय वॉइस इज क्लियर नाउ। थैंक यू। या एंड एनी इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी, जैसे मैंने बताया जो डेवलपमेंट स्टेज में इंग्वाइनल रीजन से अगर स्क्रोटल सैक में टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं होती है, और या तो इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी के वक्त वहां पे कोई ट्रॉमा हो जाता है टेस्टिकल्स को, सो वहां पे हैम्परिंग हो जाता है स्पर्म प्रोडक्शन में। कमिंग फर्दर टू कॉजेस, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी माने कैंसर ड्रग, जो कैंसर ड्रग जो साइटोटॉक्सिक होते हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर करते हैं और टेस्टिकुलर टिश्यू में प्रॉब्लम। We are having technical problems. Oh no, I hope the voice is clear and the video is also clear. Yeah. When we're talking about the chemotherapeutic drugs, so cytotoxic drugs अगर use किए जाते हैं, so that definitely has impact on the sperm cells, so which will lead to sperm production hampering. Again we are coming to genetic causes of it. So testicular causes में genetic causes जो हम देख रहे हैं कि Klinefelter syndrome, that is normal chromosomal जो structure है मेल्स में होता है XY, बट ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें XXY ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और Y क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, या Y क्रोमोसोम इज नोन फॉर सिंबल फॉर द मेल क्रोमोसोम। सो इस Y क्रोमोसोम के किसी भी फैक्टर में अगर डिलीशन हो गया हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो इट इज अगेन गोइंग टू लीड द जेनेटिक कॉजेस ऑफ द टेस्टिकुलर हैम्परिंग। और कमिंग टू फर्दर थिंग्स, ऑब्स्ट्रक्शन टू दी स्पर्म ट्रांसपोर्ट, जो हमारे मेल्स में पाया जाता है स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिकल्स में। सो टेस्टिकुलर स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद ये स्पर्म्स जो है वास डेफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट द्वारा वीर्य में स्पर्म्स पाए जाते हैं। तो अगर इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, सो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट है, तो दीज आर गोइंग टू लीड विद दी obstructive causes of the sperm transport. So the common causes जो है कंजेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस। सो जो वास डेफरेंस जो स्पर्म हमारे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अगर वही एब्सेंट है, डेवलपमेंटली ही जेनेटिकली या डेवलपमेंटली एब्सेंट है, तो उन केसेस में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है या स्पर्म्स हमें वीर्य में नहीं दिखाई देते हैं। कमिंग टू इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है जैसे क्लाइमेडिया, गोनोरिया एंड सिफिलिस, दीज आर गोइंग टू कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आगे जाके वैसेक्टोमी, किसी पुरुषों में नसबंदी की गई हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो वैस डिफरेंस को, तो इन केसेस में भी स्पर्म्स जो है हमें वीर्य में नहीं मिल सकते हैं।
या तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट अगर है किसी वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, किसी स्वेलिंग की वजह से, कोई ट्यूमर्स की वजह से, सो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी हैम्परिंग ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन अगेन. And further talking about the male infertility causes, the problems are with sexual intercourse, which is first and foremost thing for any couple to have pregnancy. So these factors are related to completely sexual intercourse. So the common cause what we see is erectile dysfunction. So ये इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है कि जो इरेक्शन है, जो पेनिस इरेक्शन जो क्वाइटल एक्ट के वक्त होना चाहिए तो वो हो नहीं पाता. तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कि जिसमें वैस्कुलरिटी जो है पेनिस को वो कम है, पेनिस का कर्वेचर गलत है, या कोई साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स है जिनकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है. तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेफिनेटली हमें कॉज फैक्टर में कंसिडर करना होता है. 65% पीपल आर सफरिंग थ्रू दिस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. अगेन कमिंग टू फर्दर कॉज इज लाइक प्री मैच्योर इजैकुलेशन. जब भी कॉइटल एक्ट में इजैकुलेट जो है वो डेफिनेटली क्वाइटल एक्ट के पहले ही या क्लाइमैक्स के पहले ही स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं, सो इसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं. हम वन बाय वन इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आगे सोचेंगे. many of the times painful intercourse can lead to absence of this ejaculation or erection. So painful intercourse जब पाया जाता है, so उस केस में whether it is ऑर्गन रिलेटेड, सो पेनिस में कोई प्रॉब्लम है या स्किन जो है पेनिस की वो आगे आ गई है, हाइपोस्पेडियस है, सो वी हैव टू रूल आउट दोज कॉजेस एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली. Again, hypospadias is an anatomical abnormality near the urethral opening, so where the skin is cannot be displaced. Again, coming to further cause like retrograde ejaculation. So इसमें क्या पाया जाता है कि जो sperms जो है, जो वीर्य में आने के बावजूद वो वीर्य में नहीं पाए जाते और वो यूरिन में पाए जाते हैं, तो उसे रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहा जाता है. तो इसके लिए भी क्या ट्रीटमेंट करनी है हम आगे डिस्कस करेंगे. So there are like these all problems are related to many a times it is related to psychological problems. So we have to deal with the psychological problems first. There has to be proper counseling, behavioral treatment, and then आगे बढ़ के हमें male infertility को treat करना होगा. Many a times it is medication related also. मेडिकेशन रिलेटेड माने जो हाइपरटेंशन के मेडिकेशन चलते हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है या सिमेटिडिन है, तो ये जो है ये भी स्पर्म ट्रांसपोर्ट में और इरेक्शन में, इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन में प्ले करते हैं मेजर रोल. सो आगे जाके आर्थराइटिस के लिए जो मेडिकेशन है, डायबिटीज मलाइटस के लिए जो मेडिकेशन है, या डिप्रेशन के लिए जो मेडिकेशन चल रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, सो उसकी वजह से भी स्पर्म्स पे इफेक्ट आता है. और इन्फेक्शंस किसी भी प्रकार के जो हम पाते हैं, इन्फेक्शन जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, दिस डेफिनेटली हैव इम्पैक्ट ऑन दी सीमेन क्वालिटी. और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, सो दिस कैंसर ड्रग्स आर डेफिनेटली साइटोटॉक्सिक एंड दीज आर गोइंग टू हैम्पर द स्पर्म प्रोडक्शन. And further coming to, this is always talked about in any infertile couple, health, lifestyle and related causes. So obesity is a major issue what we are facing nowadays. So obesity, the BMI more than 25, 26, the males are getting infertile just because of the obesity. So what obesity has to play role on? आप सोचते होंगे कि ओबेसिटी की वजह से जनरली फीमेल्स को बताया जाता है वेट रिड्यूस कीजिए तब आपका फर्टिलिटी इशू सॉल्व हो जाएगा, बट डेफिनेटली मेल इनफर्टिलिटी में भी ये इशू काफी मायने रखता है. सो ओबेसिटी हैज इम्पैक्ट ऑन दी गोनाडोट्रोफिन रिलीज. जो हॉर्मोन्स टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन रेगुलराइज करते हैं, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो कॉज होता है. आगे जाके हम ओबेसिटी के बारे में और सोचे तो ओबेसिटी में जनरली हमें जो पाया जाता है कि ग्रेलिन और ये ग्रेलिन हार्मोन जो है, इवन दैट हैज इम्पैक्ट ऑन दी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन, तो इस वजह से इसमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आगे जाके टेस्टिकुलर स्पर्म प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. सो जनरली ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया, ओलिगोएस्थेनो मतलब
स्पर्म का काउंट और मोटिलिटी काफी कम पाई जाती है। दूसरी चीज है, ओबेसिटी की वजह से स्क्रोटल टेम्परेचर जो है वो काफी हाई हो जाता है। ओबेसिटी की वजह से एडिपोज टिश्यू जो है वो स्क्रोटम पे प्रेशर डालते हैं और अराउंड स्क्रोटल टिश्यू एडिपोज टिश्यूज इन ज्यादा जमा होने की वजह से स्क्रोटल टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग, निकोटिन, इट हैज डेफिनेटली बैड इम्पैक्ट ऑन द स्पर्म प्रोडक्शन एज एवरीवन इज अवेयर ऑफ। अब हम बेसिक जो हिस्ट्री पूछते हैं जब भी इनफर्टाइल कपल हमारे पास आते हैं तो स्मोकिंग की हिस्ट्री हम डेफिनेटली पूछते हैं बिकॉज विच इज बिकम वेरी कॉमन हैबिट ऑफ मेल्स राइट nowadays. So this is very important that cigarette smoking, because all this nicotine causes oxidative stress to the sperm cells, तो वो हमें नहीं चाहिए होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्स पे आ जाता है। सो उसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी जो है वो हैम्पर हो जाती है एंड स्पर्म डीएनए डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड दिस लीड्स टू मेल इनफर्टिलिटी फर्दर। Tobacco chewing, cigarette smoking, so definitely nicotine usage is not recommended. Alcohol and drug use, overdoing the alcohol or drugs are definitely causing the spermatogenesis hampered. अगेन डिप्रेशन, सो साइकोजेनिक अगर कोई कॉजेस है तो इसमें लॉस ऑफ लिबिडो पाया जाता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो दिस डिप्रेशन इज अनदर कॉज ऑफ इट। इमोशनल स्ट्रेस इज ऑल्सो लीडिंग टू द स्पर्म अफेक्शन। When we are talking about the and one more, nowadays what we are seeing is, as everyone is at home using work from home and using laptops, so all these laptops, these are going to radiate the thermal radiation, so the अगर हम ये लैपटॉप्स अगर लैब पे लेके बैठ रहे हैं सो थर्मल रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर जो है स्क्रोटल सैक में वो ज्यादा हो जाता है एंड डेफिनेटली टेस्टिकुलर डैमेज इज ऑलवेज anticipated. When we are talking about further causes, again we will come to environmental causes. So overexposure of any environmental elements that reduces sperm production and sperm function. As industrial chemicals जो होते हैं, exposure to pesticides, organic solvents होते हैं, so definitely which also has a role on sperm production. Heavy metal exposure, exposure of lead and mercury definitely causes oxidative stress to these sperms. Radiation exposure, रेडियोथेरेपी किसी कैंसर पेशेंट के लिए चल रही है सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन दी टेस्टिकल्स, सो इट इज गोइंग टू लीड दी मेल इनफर्टिलिटी and overheating of the testicle should be avoided, as long hours of driving, frequent use of hot baths or sauna baths, and tight clothing, working on laptop, sitting for longer periods, so that definitely has to be avoided to further get affected with the infertility part. Viewers, I just request you, if you have any question in between, you can just write down your questions so that I can be in a better position to read those questions and answer your queries. So now we have know the causes of male infertility, what can cause, in short, what can cause the male infertility. So coming to investigation, how to diagnose this male infertility factor. So definitely when we are talking about male infertility, we are not supposed to forget a female infertility factor also. For so when we are coming to investigations in the male factor, so investigating the male, Mr. Nandesh is asking about the how sperm count naturally. I can't read your question fully. Okay, we'll be coming to the questions also. So when we are talking about the male infertility and investigation, so semen analysis is the basic investigation in male factor, and that is very simpler form of investigation in male infertility. So when we are talking about the semen analysis collect किया कैसे जाता है?
So it is a masturbation sample, and at least it has to be 2 to 7 days abstinence, not less than 2 days abstinence or not more than 7 days abstinence. तो ये सैंपल जो है हम स्टेराइल कंटेनर में लेते हैं, और ये जो उसका वॉल्यूम, उस स्पर्म का काउंट, ये सारा हम माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं. So we have to see for the sperm count. First, semen analysis is the basic investigation where we can get to know about the 80% of the information from the male factor. So where we are talking about the male infertility factor, so semen count जो है very important it is. जो sperm concentration है according to WHO 2010 guidelines, so count definitely has to be 15 millions per ml. We're coming to the count. Motility has to be 32% progressive motility, and overall motility of the sperms has to be 40%. So what does it mean? Sperm की जो मोटिलिटी माने उनकी हलचल करने की जो क्षमता है, जिनको एक तक जाके पहुंचना है, तो वो क्षमता कैसी है? सो दैट हैज टू बी डिनोटेड विद द मोटिलिटी फैक्टर. काउंट पर एमएल काउंट हम कंसिडर करते हैं. अगेन, मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म, जब हम ये स्पर्म माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, सो व्हेन द स्पर्म इज सीन, इट हैज टू बी मैग्नीफाइड टू द 400 माइक्रोन साइज. एंड वो जो स्पर्म हम जब देखते हैं, तो उसमें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ है क्या उस स्पर्म्स में, वो देखते हैं. तो नॉर्मल स्पर्म को हेड, एक्रोसोमल कैप, मिडिल पीस, नेक, मिडिल पीस जो होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रिजर्व होता है, जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बी पास्ड ऑन दी प्रोजेनी वो स्टोर होती है, वो हमें देखना जरूरी होता है. टेल ऑफ द स्पर्म, सो दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. तो ये मॉर्फोलॉजी है जो नॉर्मल स्पर्म्स हम देखते हैं. सो इट हैज टू बी एटलीस्ट 4% इन दी टोटल सीमेन सैंपल. सो ये जो पैरामीटर्स है ये हमें बिल्कुल वॉच करना जरूरी होता है. Coming to further investigations, like medical history is very important. If patient is having hypertension, high BP, high blood sugar levels, or any surgeries in the past, to know the causes, like what is wrong in this male. So as we had discussed the causes, if it is like testicular cause or post-testicular cause or any infective cause. So for this to know, so we have to know about the any surgeries in the past, any pelvic surgeries in the past, any chemotherapy has been used, or any radiations for the any cancer treatment patients, या किसी के. कमिंग टू द हार्मोनल टेस्टिंग, हार्मोनल टेस्टिंग में बेसिक टेस्टिंग ये होती है: एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, testosterone, that is a basic male hormone, what we are thinking. So male hormone definitely 300 nanogram per ml से ज्यादा होना चाहिए. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, ये नॉर्मल है, लो है, तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, और या कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है या जेनेटिक कॉज है. और थायराइड डिसऑर्डर, सो थायराइड लेवल्स हैज टू बी चेक्ड. अगेन कमिंग टू सिस्टिक फाइब्रोसिस, जेनेटिक मटेरियल जो है पास ऑन होता है, सो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कोई कंडीशन है क्या, सो दैट वी हैव टू सी फॉर. एंड कमिंग टू द रूटीन जनरल हेल्थ इन्वेस्टिगेशन, सो वी हैव टू चेक फॉर द बीएमआई. इन हिस्ट्री वी हैव टू डिग आउट द स्मोकिंग, निकोटिन यूजेज कितना है, बिकॉज दैट डेफिनेटली हैज इम्पैक्ट ऑन द sperm quality. Alcohol, whenever it is a higher age, even that matters a lot. Generally 60-70 age तक sperms, अगर healthy lifespan है, so definitely it is not getting affected. But as age is advancing, so there are many vascular changes are happening in the body, so definitely it will also lead to some impact on the fertility potential. Stress, occupation, as I said, occupation is also very important, and stress again a factor. Occupation मतलब जो drivers होते हैं, long hours of driving, or like people who are using laptops and keeping their laptops on their thighs, so even it is going to reduce the fertility potential of those males. Or exposure to the pesticides, any organic solvents, those who are working in the chemical industry, so we have to think about those also in history part. History of infections, definitely again we have to think about urinary tract infection, any sexually transmitted diseases, any tuberculosis history in the past, that is very important history in India at least.
So tuberculosis has impact on the Sertoli cells, so it is going to lead the male infertility further. Mumps, infection of mumps in the childhood, even that has a basic, that comes to testicular causes of the male infertility. मेल इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमें पता एक बेस आई होप आई एम ऑडिबल सम नेटवर्क इशू सॉरी व्यूअर्स सो जब हम मेल इन्वेस्टिगेशंस करने जाते हैं सो वी हैव टू थिंक अबाउट सेक्सुअली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम कभी कभी देखते हैं कि किसी मेल्स में बियर्ड ग्रोथ सही से नहीं है, मुस्टैच ग्रोथ सही से नहीं है. सो ये जो है ये हमें क्लू देता है when patient walks in our OPD. So we have to think about all these things. So definitely gait of the patient कैसे चल के आ रहा है, उनका स्टेचर कैसा है. देयर आर मेनी थिंग्स लाइक जैसे हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव फैक्टर्स में सोचा था, तो उसमें पेशेंट का गेट, हाइट बहुत ज़्यादा होता है. सो डेफिनेटली हमें उसके बारे में सोचना होता है. सो दिस इज़ कंप्लीट ऑब्जर्वेशन व्हेन पेशेंट इज़ कमिंग टू दी ओपीडी, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन जो है वहीं से शुरू होते हैं हमारे लिए. सो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू जाते हैं, सो स्क्रोटल स्किन हैज़ टू बी चेक फॉर टेस्टिकुलर वॉल्यूम जो है अराउंड 12 ml से टेस्टिकुलर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए. साइज ऑफ द टेस्टिस हैज़ टू बी नोटिफाइड. और पेनिस कोई कर्वेचर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेनाइल स्किन में, कोई इन्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई डिस्चार्जेस या कोई ब्लडी डिस्चार्ज या कोई वाइट डिस्चार्जेस, ये सब कुछ सही है कि नहीं ये हमें एग्जामिन करना ज़रूरी होता है. एपिडिडाइमिस जो होता है वहाँ पे कोई नोड्यूल्स नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, जिससे हमें पता चल सकता है. हम सिंपल एग्जामिनेशन के थ्रू ही कॉज के हद तक पहुँच सकते हैं कि दिस इज़ द कॉज फॉर द मेल इनफर्टिलिटी in this case. I hope I am audible. Mr. Sunil is asking how much sperm count should be in body. So for the pregnancy sake, for the fertility potential, जैसे मैंने कहा कि WHO गाइडलाइंस के हिसाब से नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है 15 मिलियंस पर ml होना चाहिए. वॉइस इशू. वो कनेक्ट हुआ है. ये तो बंद है. 12 to 15 या 10 to 15 millions है, so definitely we can try with certain kind of treatments and go ahead with the pregnancy. So it is not that अगर आपका काउंट 14 million है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी. So definitely not that. I hope the voice is clear. Yes. हाँ वो कनेक्ट हो गया. हाँ. I hope I am audible. Yes, Mr. Sunil, about your question. Sorry for the interruption. एंड स्पर्म काउंट जो है हम कह रहे हैं कि नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है 15 मिलियन पर ml होना चाहिए. जब ये स्पर्म काउंट. हेलो.
हाँ? वो है आवाज हेलो हेलो So coming to the investigation, if I am not audible, please comment in the comment box. Discussion like male investigation. So general investigations के बाद we come to hormonal investigation. I hope this is audible. झालं का नाही अभी देख Hello. Check with the volume, please. चेक करून सांगणार का मला तुम्ही 2 मिनिटं कानातून काढा तुम्ही If you keep it close, it works. कनेक्ट झालं का तुम्हाला ब्लूटूथ कनेक्ट झालं I hope my voice is clear right now. Yeah. Mr. Sunil, about your answer. So the count has to be 15 million per ml. So if the sperm count is like between 10 to 15 ml, millions per ml, even that is fine for the conception. No, no worry about it. And with the advanced technique, even if the sperm count is as low as 1 million, we can definitely go ahead with the your sperms for the pregnancy sake. But we have to use advanced methods of the fertility. Yeah, coming to the investigations part, when we are talking about the history, all occupational history and past surgical history. So for the specific investigations, जब भी हम जानना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी के स्पर्म्स की प्रॉब्लम है, so definitely we have to have the after semen analysis if there are problems, so we have to know what are the problems like and उनके solutions क्या है. So hormonal testing में हम करते हैं FSH हार्मोन, LH हार्मोन, थायराइड प्रोफाइल, सीरम टेस्टोस्टेरॉन एंड सीरम प्रोलैक्टिन और सीरम E2 लेवल्स. तो इसके बारे में अगर हार्मोन लेवल की कोई कमी आती है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट हार्मोनल लेवल. सो अगर FSH हार्मोन और LH हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन हम बेसिक लेवल पे अगर टेस्ट करते हैं, सो नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए FSH हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन नॉर्मल होना जरूरी है. और इस हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म अगर सिचुएशन है, तो उसमें FSH हार्मोन लो होगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन भी लो होगा. तो जब हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जानते हैं अगर प्रॉब्लम कहाँ पे है, सो हम इनको ट्रीट कर सकते हैं. सो इन दिस केस लाइक हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म जो जहाँ पे FSH और टेस्टोस्टेरॉन ये दोनों तरीके के हार्मोन अगर लो एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस अगर है कि स्पर्म प्रोडक्शन अगर एबनॉर्मल हमें दिखाई दे रहा है,
तो FSH हाई है या टेस्टिकुलर कॉज है, टेस्टोस्टेरॉन अगर नॉर्मल है, सो वी हैव टू नो अबाउट दी टेस्टिकुलर, वो है तो हम गोनाडोट्रोफिन्स दे सकते हैं। और इस्ट्रोजन लेवल्स किसी के कम है तो एंटी इस्ट्रोजेनिक थेरेपी हम दे सकते हैं। Coming to the particular investigations, they are like ultrasound, scrotal doppler आपने सुना होगा, जिसमें हम वेस्कुलरिटी जो स्क्रोटम की है वो पता कर सकते हैं। एनी डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, अगर किसी के प्रेगनेंसी पहले रुक चुकी है बट प्रेगनेंसी आगे सर्वाइव नहीं हो पा रही है, तो इस केस में मेल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हमें बताया जाता है कि डीएनए स्पर्म में कोई डैमेज तो नहीं है, सो वी हैव टू नो अबाउट दी डीएनए फ्रेगमेंटेशन। कमिंग टू द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, सीमेन कल्चर इज वन ऑफ देम, जिसमें हमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं वो पता कर सकते हैं और इन्फेक्शन की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट, किसी किसी में ऐसे होता है कि कांटेक्ट रखते वक्त सर्विक्स सर्वाइकल म्यूकस तक अगर स्पर्म्स पहुंच रहे हैं पर बॉडी में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज अगर तैयार हो रहे हैं तो ये स्पर्म्स जो है ये वहीं पे सर्वाइव नहीं करते हैं। सो डेफिनेटली वी हैव टू नो अबाउट दिस एंटी स्पर्म एंटीबॉडी इफ देयर आर प्रेजेंट एनी इन दी बॉडी। सो इन चीजों को ट्रीटमेंट कैसे करना है, सो कमिंग टू हार्मोनल कॉजेस ऑफ इट, सो वी हैव पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स फॉर द कॉजेस। हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म में हम हॉर्मोन्स यूज कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वीकली दिया जा सकता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है तो इसके डोसेज डिसाइड होते हैं अकॉर्डिंगली। और इसके बाद हम GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं टू मेंटेन दी स्पर्मेटोजेनेसिस। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है डेफिनेटली वन हैज टू बी टोल्ड अबाउट द डाइट पार्ट आल्सो, टू हैव द एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट विच हैज टू बी रिच इन कैरोटीन, जिंक, सेलेनियम। सो इससे भी स्पर्म प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है। और सप्लीमेंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स विथ फॉर्म ऑफ कोक्यू, सो वी कैन प्रिस्क्राइब दिस पेशेंट्स टू इम्प्रूव द स्पर्म क्वालिटी। सर्जिकल कॉजेस जो है, अगर किसी के केस में वास डेफरेंस ब्लॉक है, जो हम कह रहे थे कि जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट है अगर वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, वास डेफरेंस में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, सो डेफिनेटली वो किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ रुकावट है, वो हम पता करते हैं। उसके लिए हम वैजोग्राफी कर सकते हैं कि वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं और कहाँ पे वो प्रॉब्लम है तो वहां से वो ब्लॉक निकाला जा सकता है। तो देर आर सर्जिकल टेक्निक्स ऑल्सो टू इम्प्रूव दिस। सो what is this question? Treatment cost. Can you just elaborate your question, please, Mr. Afzal? Treatment cost of what? Mr. Sunil, I'll just read out the question. Mr. Sunil is asking how to increase the sperm count naturally and any special diet. Definitely, as I told you, कि lifestyle modification is very important. So अगर आपकी sedentary lifestyle है तो definitely exercise is one which will be having positive impact on your spermatogenesis. So हमें डाइट के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन की चीजें आप ज्यादा लीजिए। ओबेसिटी के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, ओबेसिटी अगर आपको पॉजिटिव फैक्टर लग रहा है तो डेफिनेटली लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना जरूरी है। मल्टी मिनरल्स, मल्टी विटामिन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू हैव द गुड स्पर्म काउंट। सो लाइफस्टाइल चेंजेस, एज आई एम कमिंग टू इट, लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर आपका BMI 25 के ऊपर है तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। एरोबिक एक्सरसाइजेस आर डेफिनेटली हेल्पफुल टू रिड्यूस द ऑक्सीडेटिव stress on the sperms, so one can go ahead with the things. How many rupees need to the treatment, Mr. Afzal? If you are talking about IVF procedures, so IVF procedure अभी किसके केस में प्रॉब्लम क्या है, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, या मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी अगर हम उसके लिए अगर ओलिगोस्पर्मिक पेशेंट है, अगर स्पर्म काउंट थोड़ा सा ही लो है, सो डेफिनेटली उनको एंटीऑक्सीडेंट दे के हम 1 मंथ के बाद सीमेन एनालिसिस रिपीट करके उनको IUI के थ्रू भी प्रेगनेंसी दे सकते हैं। सो IUI की कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी कि किस हॉर्मोन्स हम यूज करें, कोई टैबलेट्स यूज करें, उसमें फीमेल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑन एन एवरेज इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट द ICSI प्रोसेस, सो टोटल टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट विल बी लाइक 1.7 to
2 lakhs on an average, but definitely it will vary patient to patient. I hope, Mr. Afzal, I've answered your question. If anything, you can just ask me again. Yeah. So lifestyle changes में definitely smoking quit karna is a important aspect of the sperm production part. Mr. Sunil is asking, फैटी एजेड वुमेन प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर लो काउंट हो, क्योंकि सो संबंध में पेन होता है. सो दैट इज व्हाट आई डिस्कस्ड आल्सो. सो पेन डिस्पैरेनिया अगर फीमेल पार्टनर को है या मेल पार्टनर को है, वी हैव टू डिग आउट. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मेल फैक्टर राइट नाउ, सो फैटी एजेड वुमेन अगर अगर प्रेगनेंसी के लिए फीमेल की ओबेसिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो फीमेल ऑल्सो शी हैज टू रिड्यूस द वेट टू 10% of her total weight. So BMI should not be more than 25-26 at least. अगर पेन हो रहा है तो पेन किस वजह से है, दैट वी हैव टू डेफिनेटली सी फॉर. अगर फीमेल्स के केस में इट इज डिस्पैरेनिया, किस वजह से है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, और जस्ट द ओबेसिटी इज द कॉजेटिव फैक्टर, नॉट फॉर इट इज नॉट अलाउइंग द पेनाइल इंसर्शन, और व्हाट. So we have to see for the cause and go ahead with the treatment part. So lifestyle में we have to quit the smoking, alcohol should be completely no thing, and healthy diet has to be followed. It is not only for the females but even male has to follow when we are talking about the fertility potential of the couple. So everyone has to think about it. So अगर जो हम सीमेन फैक्टर में देख रहे थे, तो स्पर्म्स की जो क्वालिटी अगर कम है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है. अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है, सो अगर ऑन एन एवरेज 10 to 15 मिलियन में स्पर्म्स है, तो इनको एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी, साइकोजेनिक थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी दे के हम रिपीट करते हैं स्पर्म काउंट 4 वीक्स के बाद. अगर वो सही है, सो डेफिनेटली वी कैन गो फर्दर. और इसमें अगर सिर्फ काउंट की प्रॉब्लम है, मोटिलिटी सही है, सो IUI होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. इस केस में हम जो है स्पर्म्स जो है वॉश करके उसमें से सिर्फ हेल्दी मोटाइल स्पर्म जो है फीमेल की यूट्रस की कैविटी में छोड़ देते हैं जब उनका ओव्यूलेशन डॉक्यूमेंट करे. तो इसे हम IUI कहते हैं. सो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन डेफिनेटली कैन बी एडवाइज्ड विथ माइल्ड टू मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया इज स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन. सो आगे बढ़ते हुए अगर स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, 1 to 2 मिलियन तक स्पर्म काउंट है, सो डेफिनेटली वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग. इन पेशेंट्स का कैरियोटाइपिंग भी होना जरूरी है. कोई प्रॉब्लम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है वो पता करना जरूरी है, और एनी वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, क्योंकि ऐसे स्पर्म काउंट में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी पाई जाती है. सो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट. सो ये सारी चीजें हमें कॉज फैक्टर जो है फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसे ट्रीट करना है. When we are coming to the treatment part, 1 to 2 million sperms hai. So in this era, definitely we can't say that patient has to go ahead with something or the other or any donor sperm sample straight away. But definitely इस केस में हम ICSI की प्रक्रिया द्वारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जब स्पर्म काउंट इतना लो होता है, so definitely we can utilize this procedure and go ahead with the pregnancy. So हम इस केस में फीमेल फैक्टर भी जनरली रूटीनली चेक करते हैं, और अगर फीमेल फैक्टर सही है और 1 to 2 मिलियन काउंट है, सो IVF की पूरी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस द्वारा फीमेल्स को इंजेक्शन देके उनके एग्स ग्रो करके उनके एग्स जो है oocyte रिट्रीवल की प्रोसीजर के द्वारा एग्स जो है हम लैब में लेते हैं. स्पर्म्स जो है हम सेंट्रीफ्यूज करके सैंपल में से रिसीव करते हैं, और ये स्पर्म जो है वन स्पर्म इज इंजेक्टेड. सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन माने एग का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हम ये स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, और इसके द्वारा तैयार होने वाले जो एम्ब्रियोज है, भ्रूण जो है, वो हम ट्रांसफर करते हैं. सो जब जिन केसेस में 1 to 2 मिलियन काउंट है, तो डेफिनेटली इफ देयर आर नो एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, दैट पर्सन कैन बी अ फादर विथ हिज ओन स्पर्म्स. If there are situations like this azoospermia. This is very commonly found condition right now in nowadays. So azoospermia मतलब जहाँ पे sperms
पाए ही नहीं जाते हैं सीमेन में, 0 काउंट स्पर्म काउंट ऐसे दिया जाता है. सो बट वी हैव टू सेंट्रीफ्यूज दिस. सो एटलीस्ट 4 वीक्स इंटरवल पे 2 स्पर्म काउंट हम चेक करते हैं, 2 सीमेन एनालिसिस करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये मशीन में हम स्पर्म्स जो है 1500 आरपीएम के हिसाब से इनको देखते हैं कि इस पे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कोई स्पर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं. सो डेफिनेटली वो स्पर्म्स हम रिट्रीव कर सकते हैं. सो दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर दी दिस ICSI टेक्निक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक. अगर इसमें स्पर्म्स पाए जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पाए जाते हैं सो देन कम्स टू दी टेस्टिकुलर एक्सप्लोरेशन. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये स्पर्म प्रोडक्शन जो है टेस्टिकल्स में होता है. अगर जिनके केस में अजूस्पर्मिया है, जिनके हार्मोनल प्रोफाइल, FSH हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स हमने टेस्ट किए और ये सारे हार्मोन सही पा रहे हैं या थोड़े से लो मात्रा में पाए जा रहे हैं, सो डेफिनेटली वी कैन रिट्रीव दी स्पर्म्स फ्रॉम दी टेस्टिस डायरेक्टली. तो ये जो स्पर्म्स है हम टेस्टिस से डायरेक्टली रिट्रीव कर सकते हैं, जिसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास होते हैं, टेसा, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, जो ऊपरी तौर पे टेस्टिस से हम स्पर्म रिट्रीव करते हैं. अगेन गोइंग फर्दर टू दिस, टेसे प्रोसीजर है जिससे हम एपिडिडाइमल स्पर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इसमें मिड लाइन में इंसिजन आता है टेस्टिस में. इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जहां से हम टेस्टिकुलर स्पर्म्स रिट्रीव कर सकते हैं, और वो स्पर्म्स जो रिट्रीव करके हम वो यूटिलाइज करके वाइफ के एग्स में इंजेक्ट करते हैं, इक्सी द्वारा उसके एम्ब्रियोज तैयार कर सकते हैं. और भी इनके तरीके हैं. पैसा किन किन चीजों में क्या प्रॉब्लम है तो वो फाइंड आउट करके अकॉर्डिंगली हम परक्यूटेनस एपिडिडाइमल स्पर्म रिट्रीव करने हैं या टेसे प्रोसीजर करनी है. एंड फर्दर कमिंग टू ऑल दी सर्जिकल प्रोसेस, देयर इज वन मोर थिंग दैट माइक्रो टेसे. सो इसमें हम टेस्टिकुलर नीडल से ही स्पर्म एस्पिरेट करते हैं, बट इसमें सर्जिकल इंसिजन होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि कहाँ पे स्पर्म्स हम ले सकते हैं, तो वहां से हम वो स्पर्म्स जो है बायोप्सी कर लेते हैं. सो दीज आर फ्यू थिंग्स, सर्जिकल ऑप्शंस फॉर दी टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन. और किसी के केस में और किसी के केस में अगर स्पर्म्स जो है अवेलेबल ही नहीं है, तो उन केसेस में सारी टेस्टिंग करने के बाद अगर हमें पता चल रहा है कि स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, तो इन मेल्स के लिए देर इज अ लास्ट रिसोर्ट दैट artificial insemination with donor sample. So many of the IVF labs, even we do have the sperm bank available. So sperm bank से हम sperms जो है मैच करके लेते हैं, and that female can be a she can achieve the pregnancy with that sperm. Mr. Afzal is asking, you can connect to us at our, I am working with Nova IVF Pune Center. So whenever you want to have a consultation, so you can connect me at Nova IVF Pune Center, Maharashtra. If there are any questions, I'll be happy to answer those. And there are furthermore techniques so that we can think about it. So एक होता है जिनमें DNA डैमेज है या DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हाई है. So ये DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जो है स्पर्म्स में अगर हाई होती है, so these sperms are going to cause the abortions in the progeny or any abnormalities in the progeny. First of all, ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी ही नहीं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस हम देख सकते हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस आर क्वाइट कॉमन व्हेन द स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स इज हाई. सो ये जानने के लिए हम सोच सकते हैं कि स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स की टेस्ट कराई जाती है, जिसमें हम 1 डे एब्सटिनेंस का सीमेन सैंपल लेते हैं और वो लैब में देख के हम DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर ये DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स 25% से ज्यादा है, सो डेफिनेटली इट नीड्स टू बी ट्रीटेड. सो ये ट्रीटमेंट के लिए इसे एंटीऑक्सीडेंट्स देना जरूरी होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना जरूरी होता है, देन डेफिनेटली वी कैन go further with the treatment of this DNA fragmentation index. और जब DNA fragmentation index ये करने के बावजूद भी अगर higher side पे ही रहता है, so ICSI is the solution for those patients so that we can select better sperms.
एंड वन मोर थिंग इज अवेलेबल दैट इज इमसी. सो मॉर्फोलॉजिकली जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म्स है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा इनको प्रोजेनी जो है हेल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं हम. और और जाके जो है हम स्पर्म सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं जिसमें माइक्रोफ्लूइडिक्स है, जिसमें हम स्पर्म्स अच्छे जो स्पर्म्स है वो सॉर्ट कर सकते हैं. सो डेफिनेटली दोज आर हेल्पफुल इन द टेराटोजूस्पर्मिक सैंपल जहाँ पे स्पर्म की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है. So definitely we can think about that. We are talking about ICSI, so that is test tube baby procedure, which can be dealt with male infertility factors in very precise way. So this is a boon for male infertile patients. So, ICSI is definitely going to have the advancement. And further coming to the advancements, we have MAX. Magnetic cell sorter is also there. So this is a magnetic field where the sperm sample is used and it is segregated. So only the healthy and motile sperms are segregated and those are utilized for the ICSI technique. If there are any questions, I'll be happy to answer those. So, to summarize my talk of today, so definitely we have solutions for male infertility. So, one should not be at helpless situation that we can't deal with male infertility, but basic step is that we have to diagnose the male infertility. Many a times it happens that the patients are coming, only females are coming or females are getting treated, but the investigations are not done for the male partners. So first and foremost that is a simple semen analysis testing for the males, and if any problems, then definitely we can go further with the advanced investigations. And to keep your sperms healthy, you have to have healthy diet pattern, exercise, no smoking, no alcohol use, or if any medications are currently going on, definitely we can modify those medicines to have a better sperm health. Coming to chemotherapy and toxic drug usage, so before going to chemotherapy or radiotherapy for the cancer patient, so we can utilize the uh, this patient semen earlier for the freezing. So that is one advancement what we can face that. So semen freezing can be done in these patients and they can further proceed with the chemotherapy or radiation therapy. So to know the cause and to deal with the treatment, definitely. So IUI, it is a basic step. So when the patient is having low sperm count or less motility, not too less motility, so definitely we can use these sperms by washing techniques, density gradient method, and we can use this sperms for the IUI sample. So intrauterine insemination for the lower sperm count or little lower motility. When the patients are having azoospermia or very low sperm count, so we have ICSI procedure. And further, if azoospermia is there but the hormonal balance is there, so definitely we can have testicular extraction of the sperms via TESA procedure, TESE, PESA, MESA. So there are many procedures for surgical extraction, and we can have healthy pregnancy with these embryos. And coming to DNA fragmentation, if any patient has DNA fragmentation index high, so we can utilize ICSI with microfluidics or MAX process. So thank you for watching me. If you have any questions, you can just comment on the chat box. I will be answering it later.